So good morning students, and today we will be solving one numerical on drilling. So I am not going to discuss drilling operation in detail, but I would like to give you brief introduction about this. Okay. So drilling is the operation which is performed on drill machine, and it is basically used for making a hole in a workpiece. We can make a hole that is through hole or blind hole also. A hole which is made through the body or a metallic piece is known as through hole. But when a hole is made up to a certain depth in a workpiece, then it is known as a blind hole. Okay. So you can see this figure. Definition तो आप लोगों को clear होगी, बताने की जरूरत नहीं है. A drill bit is used for making a hole in a workpiece. Normally it is a metallic workpiece. It can be of other material also. We can make a hole in plastic as well as in wood or other engineering materials also. If we have to make a hole up to this much distance, this much length in this workpiece, then it is known as blind hole. On the other hand, if we have to make a hole in this workpiece throughout its depth, then it is known as through hole, THROUGH, through hole. So this is through hole and this is a blind hole. The tool used in this case is a drill bit, which will be having number of cutting edges. Normally there are spiral flutes all over the length of this drill bit, and there are 2 to 3 cutting edges provided for making a hole in this case. The drill bit is having rotary motion. In this case, either the workpiece or the drill bit can move in linear direction also. In this case, these two motions are given to the drill bit. So primary motion is the rotation of the drill bit, which is used for making a hole or removing unwanted material from this workpiece in order to make a hole. Feed can be given to this workpiece while moving in upward direction, or it can be given to the drill bit also when it moves in downward direction. So in this case, the two motions, primary as well as secondary, cutting motion or feed motion, both are given to the drill bit. Rotary motion of the drill bit is the primary motion, which will be responsible for machining, and downward motion of the drill bit is the feed motion. हम जितना इसको नीचे करते चले जाएंगे, उतना जो अनकट मटेरियल है इस वर्कपीस के अंदर से वो प्रेजेंट होता रहेगा फर्दर मशीनिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए. ठीक है ना. तो ये स्लाइड तो आप लोगों को क्लियर हो गई. ठीक है ना. आगे चल हमको जो इम्पोर्टेंट है ये समझ. हाँ बोलो सर. ये मोशन जो होगा सर, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा या क्लॉकवाइज रहेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग गेज ऑन द ड्रिल बिट. ये ड्रिल बिट के ऊपर डायरेक्शन किस उसमें बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो नॉर्मली ऐसे लगता है कि इस तरह पे कटिंग गेज होगी तभी होगा, इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा. उल्टा यदि होगा तो उल्टा भी हो सकता है. वहाँ पे नॉर्मली ये रोटेशन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में के साथ ही बनाए जाते हैं इसको. ठीक है ना. क्योंकि जो मशीन्स रहती हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स रहती हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती हैं, सीधे सीधे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं उनको 90 डिग्री पर पावर ले लेते हैं, तो स्पिंडल के थ्रू इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट मिलता है. इसलिए वैसे ही यहाँ पे जो कटिंग एज होते हैं वो ड्रिल बिट की बॉडी के ऊपर बनाए जाते हैं. ठीक है. इन केस आपने ड्रिल बिट अलग बनाया हुआ तो हम इसको डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी फिर वहां पर. जैसे टर्निंग टूल होता है, मिलिंग टूल होता है, उसमें डायरेक्शन ऑफ मिलिंग कटर की डायरेक्शन रोटेशन क्या होगी वो कटिंग एज की पोजीशन पर डिपेंड करता है. सिमिलरली यहाँ पे वो कटिंग एज की पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा. ठीक है. लेकिन जो मशीन्स रहती हैं उसमें उसका मोशन हम उसका हालांकि फॉरवर्ड रिवर्स मैकेनिज्म लगा के उसको रिवर्स भी कर सकते हैं. तो लेकिन अधिकांशतः जो ड्रिल बिट रहता है, स्पिंडल रहता है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होता है वहाँ पे. इसलिए इसके जो कटिंग एज होते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं. एनी अदर डाउट? ठीक है. अब हमको इम्पोर्टेंट देखना है इसका एक न्यूमेरिकल कल मैंने आपको दिखाया था. ठीक है ना. तो उसको अपन को समझना है जो कि अपने ट्यूटोरियल में लिखा हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द ड्रिलिंग पैरामीटर्स. दे आर 3 इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग पैरामीटर्स: कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट. जितने भी मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं, वेदर इट इज टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, जो हम पढ़ने जा रहे हैं शेपिंग, सभी में ये 3 इंपॉर्टेंट मशीनिंग पैरामीटर्स होते हैं: कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट. So cutting speed or cutting motion is the rotation of the drill bits. That's why cutting speed is given as V is equal to pi dn by 1000 mpm, 1000 meter per minute, where
ये मैंने सारे पैरामीटर इकट्ठे नीचे एक साथ लिखे हुए हैं. व्हाट इज डी? इट इज डायमीटर ऑफ ड्रिल बिट इन mm. एन इट इज द स्पिंडल आरपीएम रोटेशन. और यूनिट क्या है इसकी? आरपीएम. इट इज नॉट आरपीएस. एक होती है आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, बट यहाँ पे क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट. सो if you know the diameter of the drill bit, you know the rotation rpm of the drill bit, then you can calculate the cutting speed. So in most of the cases when we solve numerical problem, in that case cutting speed is mentioned कि हमको उसको 20 एमपीएम पे कट करना है या 30 एमपीएम पे कट करना है या 100 एमपीएम पे कट करना है, तो वो दी जाती है. ड्रिल बिट का चूंकि जितने डायमीटर का ड्रिल बिट होता है उतना ही डायमीटर का होल वहां पे कट होता है, इसलिए एक ये भी हमको इनडायरेक्ट वे में पता होता है. तो हमें किस आरपीएम पे इस स्पिंडल को रोटेट करना है, वी कैन कैलकुलेट दैट एन ऑल्सो. ठीक है, तो एन आ जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू बी डिवाइडेड बाई पाई डी, उससे हम एन निकाल लेंगे. नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज फीड. फीड यहाँ पे तीन तरीके से एक्सप्रेस की जाती है. एक होती है फीड इन एमएम पर रेवोल्यूशन, एक होता है फीड इन एमएम पर टूथ. एक्चुअली क्या है, जो ड्रिल बिट है दैट इज नॉट अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इट इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. यदि ड्रिल बिट को हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि जो स्पायरल फ्लूइड्स वहाँ पे बने हैं उसमें या तो वहाँ पे 2 कटिंग एज होते हैं, 3 होते हैं और 4 भी वहाँ पे हो सकते हैं. नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कैन फाइंड दैट नंबर ऑफ कटिंग एजेस आइदर 2 और 3, जो कि उसकी लेंथ की अलोंग स्पायरल वे में वहाँ पे स्पायरल पाथ में वहाँ पे बने होते हैं. ठीक है ना, एक ग्रुप बना होता है स्पायरल पाथ में, वो ग्रुप बनाया जाता है ताकि वहाँ पे जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, चिप्स रिमूव हो रहा है, उसके थ्रू वो निकल के वहाँ पे बाहर आ जाए. इसके अलावा जो कटिंग एज होता है वो स्पाइरल पाथ में बना होता है. और यदि आप उसके नीचे वाले पॉइंट के एंगल से व्यू करें तो वहाँ पे देखेंगे कि या तो वहाँ पे 2, 3 या 4 कटिंग एज वहाँ पे, नॉर्मली 2 से 3 कटिंग एज वहाँ पे होती ही है. सो फीड इन एमएम पर रेवोल्यूशन ये इंडिकेट करता है कि ड्रिल बिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना नीचे जाएगा फॉर वन रोटेशन, वन रेवोल्यूशन ऑफ द ड्रिल. मतलब वट एवर टाइम अ ड्रिल बिट टेक्स इन रोटेशन, इन वन रोटेशन. ठीक है, ड्रिल बिट एक पूरा चक्कर घूमने में जितना टाइम लगाता है उतने टाइम में ड्रिल बिट नीचे कितना जाएगा, यदि वर्कपीस को फीड देगी तो वर्कपीस ऊपर कितना आएगा. सो दैट इज टर्म्ड एज फीड इन एमएम पर रेवोल्यूशन. अब चूंकि वहां पे 2 या 2 से अधिक कटिंग एजेस होते हैं तो हम उसको नंबर ऑफ कटिंग एज मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पे निकाला था फीड इन एमएम पर एक कटिंग एज, वो हमें दी गई होती है और फीड इन एमएम पर रेवोल्यूशन वहां पे निकाल लेते हैं. ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा हमें आगे वाला, उसमें लिखा होगा फीड इन एमएम पर टूथ इज 0.1 और नंबर ऑफ कटिंग एज 2 है, और ये भी हमें दिए गए एमएम पर रेवोल्यूशन, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे. फिर आती है फीड इन एमएम पर मिनट. तो ये जितनी आ गई है वट एवर दिस हैव वन वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय एन. ठीक है ना, एन क्या है यहाँ पे? आरपीएम. और ये एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कटिंग एजेस इन ड्रिल बिट. ठीक है, तो उससे आपका क्या निकल आएगा? फीड इन एमएम पर मिनट. ठीक. तीसरी होती है डेप्थ ऑफ कट. तो जैसा आपने पिछला फिगर देखा है, अब इसमें डेप्थ ऑफ हम कट क्या माने, क्या ये लेंथ है या ये लेंथ है, तो ये नहीं होती है. डेप्थ ऑफ कट ये डिस्टेंस ली जाती है. ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ दिस होल अप टू machined surface. So this is equal to half time the diameter or radius of drill bit. तो जितनी drill bit की radius होती है उतनी यहाँ पे ये ली जाती है. So depth of cut in drilling always as dy2 mm. अब हमें ठीक है, ये 3 क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है. नो सर. ठीक है, अपन आगे चलते हैं. ये इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए, व्हाट इज मशीनिंग टाइम, हाउ वी कैन कैलकुलेट मशीनिंग टाइम. तो यहाँ मैंने एक चीज लिखी हुई है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मशीनिंग टाइम टू मशीन वन होल ओनली. सो दिस इज गिवन. अब इसमें बिल्कुल सीधा फंडा है कि सपोज ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता है, ये डिस्टेंस कितनी है. नॉर्मली हमें वर्क पीस की थिकनेस पता होती है कि ये वर्क पीस हमारा 20 mm थिक है, 25 mm थिक है, जिसमें थ्रू होल बनाना है, तो ये डिस्टेंस पता होती है. और ये और हम यहाँ तो इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. एक्चुअली क्या होता है, ड्रिल बिट को यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट माने कटिंग स्टार्ट करने के पहले हम उसको रेस्ट करा के मूव कराते हैं किसी स्पीड पे. इसलिए ये डिस्टेंस लेना जरूरी है, जिसको अप्रोच डिस्टेंस बोला गया, ये होता ही है. और आपने जैसा इसकी ज्योमेट्री देखी होगी, यदि हम ड्रिल बिट को सिर्फ यहाँ तक लाते हैं, इस पॉइंट को यहाँ तक लाते हैं, तो पूरी सरफेस मशीन नहीं होगी, यहाँ पे कुछ अनकट पोर्शन छूट जाएगा. तो उसको इंश्योर करने के लिए कि पूरा का पूरा मशीन हो चुका है, हम इसको
इसके बियॉन्ड आगे मूव करते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दिस इज नोन एज ओवर ट्रेवल, अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल, ये डिस्टेंस भी यहाँ पे काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हम ये जितनी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम F2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम टाइम मिल जाएगा, सीधे सीधे मिलेगा। दिस T इज इक्वल टू L अपॉन F2, लेंथ ऑफ कट जो कि टोटल आई हुई है, कहाँ से आई हुई है, जिसमें वर्कपीस की थिकनेस है, वर्कपीस की कितनी डेप्थ तक हमें होल कट करना है, अप्रोच और ओवर ट्रेवल उसमें मिला लिया है। एल को क्या डिफाइन किया हमने, ए प्लस एल प्लस ओ, वेयर ए इज अप्रोच प्लस एल इज द लेंथ ऑफ द वर्क पीस या थिकनेस ऑफ द वर्क पीस, लेंथ मत मानना, जिस डायरेक्शन में हम होल कट करना जाए ना वो थिकनेस है यहाँ पे, एंड ओ इज द ओवर ट्रेवल। तो इन तीनों का जो सम है दैट इज कैपिटल एल, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब एल अकेला उतना नहीं है जो वर्क पीस की थिकनेस जिसमें हमें होल ड्रिल करना है, उसको हमने क्या मिला लिया है, वी हैव एडेड अप्रोच डिस्टेंस एंड ओवर ट्रेवल, जैसा पिछला वाला फिगर में दिखाया था। ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस अप्रोच है, ये छोटी सी डिस्टेंस ओवर ट्रेवल है, उसमें ये स्मॉल एल मिलाया तो टोटल मिल के हमें क्या मिल गया, कैपिटल एल मिल गया, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाई F2, तो ठीक। अप्रोच को कैलकुलेट करने का यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है जो जनरली बुक्स में मिल जाता है। दिस इज जनरली कैलकुलेटेड एज 0.5 टाइम्स द डायमीटर, डी इज डायमीटर ऑफ द ड्रिल बिट, मल्टीप्लाइड बाय 10 दिस 90 माइनस थीटा बाय 2, थीटा इज ड्रिल पॉइंट एंगल, इसको लिप एंगल भी बोला गया है। जनरली ये टोटल वैल्यू कितनी ली जाती है, 59 डिग्री। यदि मान लो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप सीधे इसको 59 डिग्री लेके चले जाओ, 90 माइनस थीटा बाई 2 इज जनरली टेकन एज 59। उससे हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर लेते हैं अप्रोच लेंथ, और ओवर ट्रेवल को हम इमेजिन करते हैं वहां पे, हालांकि ये पूरा के पूरे ज्योमेट्री पर डिपेंडेंट है। यदि क्वेश्चन में कोई वैल्यू दी गई है तो हम उसको ले लेंगे, यदि नहीं दी गई है तो हम इसको इमेजिन कर सकते हैं 3 mm और 5 mm। ओवर ट्रेवल कैन बी इमेजिन्ड एज 3 mm to 5 mm, 3 mm ले लो, 4 mm ले लो, 5 mm ले लो। और अप्रोच भी नहीं दिया गया, आपको कैलकुलेट नहीं करना, तो दैट यू कैन ऑल्सो इमेजिन 3 to 5 mm। अदरवाइज यदि अप्रोच आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो तो अप्रोच कैलकुलेट करो, ओवर ट्रेवल को इमेजिन करो 3 to 5 mm, और ये डिस्टेंस निकाल लो L। तो जब हमारे पास L आ गया, F2 आ गया, सो L डिवाइडेड बाय F2 विल गिव यू द टाइम टू मेक टू कट वन होल। यदि आपको 4, 6, 10 निकालना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट द टाइम, मशीनिंग टाइम। हम उसको पोजिशनिंग टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ मशीनिंग टाइम जिसमें कि एक्चुअल मशीनिंग हो रही होगी, वी कैन कैलकुलेट दैट टाइम आल्सो, ठीक है। वहां पे कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, अदरवाइज अपन सीधे न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एक्चुअली आपकी 11 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ इसको। कोई डाउट है यहाँ पे? सर सर ये फीड F2 से डिवाइड क्यों किया सर? एक एक करके पूछो, एक एक कर बोलो। सर ये F2 से डिवाइड क्यों किया सर, ये L बाई F2 देखो क्यों किया, L बाई F1 क्यों नहीं किया? एल वाई F1 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मिनट में निकालना है, ठीक है ना। यदि हम इसे डिवाइड करेंगे पर रेवोल्यूशन आएगा, वहां पे हमें टाइम पे निकालना, ये सर मशीनिंग टाइम है ना ये तो टाइम के लिए हमें फीड को किसमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मिनट में एक्सप्रेस, mm पर मिनट एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इस फीड को जो कि mm पर रेवोल्यूशन थी उसको हमने कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, फीड इन mm पर मिनट, ठीक है ना। तो जो F1 थी उसमें मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ कटिंग एज का, जो 2 या 3 हो सकते हैं, क्वेश्चन में दिए गए होंगे वहां पे, और मल्टीप्लाई किया साथ में आरपीएम से, स्पिंडल आरपीएम से। तो आपकी जो फीड रहेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, mm पर मिनट, और ये mm में है, उसको डिवाइड कर रहे हैं mm पर मिनट, तो mm कैंसिल हो जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा, तो आपको जो इसका जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, मिनट आ जाएगी। यस सर। और कोई डाउट? सर इसमें सर ये अप्रोच लेंथ भी हमने प्लस किया है, उसके बाद उसके जो थिकनेस है उसको प्लस किया सर, फिर तो ये तो ज्यादा हो जाएगा ना। पर देखो ये क्या है, यदि हम ये चाहते हैं कि ये इसको कंप्लीट मशीन करें, एक्चुअली क्या, जब एक्चुअली आप मशीन, थ्योरी में तो पढ़ना बहुत आसान है कि पॉइंट हमने इसको यहाँ पर रखा और मशीनिंग करा ली, लेकिन जब एक्चुअल मशीनिंग हो रही होती है तो उस समय ड्रिल बिट की प्रॉपर पोजीशनिंग हमें करानी होती है वर्क सरफेस के ऊपर, वो एक पोजीशनिंग टाइम अलग होता है। अब हम सीधे वर्क पीस, इस ड्रिल बिट को इस वर्क सरफेस का टच करते हुए नहीं लेके आ सकते हैं, ये इतना बड़ा वर्क पीस है, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, हमें जहां पे मशीनिंग करनी है वहां पे पोजीशन कराना पड़ेगा। पोजीशन हम सीधे इसको, इस पॉइंट को इस वर्क सरफेस से टच करा के नहीं कर सकते, तो ये हल्की सी डिस्टेंस यहाँ पे अप्रोच ली ही जाती है, हमेशा ली जाती है इन ऑल केसेस। चाहे हम टर्निंग कर रहे हो तो टर्निंग में भी अप्रोच लेनी पड़ती है, वो आपको समझाया नहीं है अभी। मिलिंग में भी करनी पड़ती है, और जितने मशीनिंग और ऑपरेशनल सब में हमें ये डिस्टेंस लेनी ही पड़ती है, ठीक है ना।
तो यदि हम क्या करेंगे, इसको सीधे यहाँ से टच करा के आ जाएंगे तो एक तो ड्रिल बिट हमारा बेकार हो जाएगा, वर्क सरफेस पे अनवांटेड एक मार्क वहां पे आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कुछ ली जाती है, ये या तो इमेजिन की जा सकती है या हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए अप्रोच है। ओवर ट्रेवल क्यों जरूरी है? यदि हम इस पॉइंट को सिर्फ यहाँ तक रख देते हैं तो चूंकि इसकी जो ज्योमेट्री है उसके अनुसार ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे अनकट मशीन छूट जाएगा, तो उसकी प्रॉपर मशीनिंग को उसको इंश्योर करने के लिए हम इसको ओवर ट्रेवल कराते हैं। ठीक है, तो या तो हम कैलकुलेट करें या इमेजिन करें वहां पे। तो दिस अप्रोच कैन बी इमेजिन्ड, ओवर ट्रेवल कैन आल्सो बी इमेजिन्ड, और इट कैन बी कैलकुलेटेड। और कोई डाउट? नहीं सर, मतलब ये मेरे कहने में मतलब ये था कि ए प्लस ओ होता तो भी ठीक था, मतलब एवरेज जितना चाहिए वो, और हमको ओवर ड्रिलिंग जो करनी है वो तो हो जाता बराबर। पर हमने थिकनेस क्यों लिया एक्स्ट्रा में, वो तो ज्यादा हो जाएगी ना वैल्यू। अरे भाई, हमारा ही वर्क पीस है, ये है 20 mm तक का, हमें यस इसमें सर। 20 mm का थ्रू होल बनाना है। ये तो मैंने आपको समझाया था शुरुआत में कि वी कैन मेक अ ब्लाइंड होल और थ्रू होल। हमें 20 mm का होल बनाना है, तो जो एल स्मॉल एल कितनी हो जाएगी? 20 mm हो जाएगी, ठीक है ना। सर प्लस अप्रोच प्लस ओवर ट्रैप, वर्कपीस उतना तुम करेगा नहीं, ये कटिंग टूल उतना तो मूव करेगा नहीं, करेगा। बगैर कटिंग टूल को ये मूवमेंट दिया आप मशीनिंग नहीं करा सकते। थोड़ी देर के लिए हम अप्रोच ओवर ट्रेवल भूल जाएं। तो यदि ये 20 mm थिकनेस का वर्क पीस है, आप इसमें 20 mm कट करना चाहते हो, तो इसका मूवमेंट कितना का 20 mm आएगा, नहीं आएगा? हाँ। हाँ, यदि आप इसको 10 mm तक ब्लाइंड होल बनाना चाहते हो 10 mm तक का, तो इसका जो फीड जाएगी वो हमें 10 mm की लिए देनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट रहेगा जो। अब चूंकि हमने बोला कि जितने भी आपकी एल है, स्मॉल एल मतलब वर्कपीस की थिकनेस जिसमें आपको होल कट करना है। बेसिकली स्मॉल इज इंडिकेटिंग द डिस्टेंस अप टू विच यू हैव टू कट अ होल, वो आपकी लेंथ है जिस होल तक आपको होल कट करना है, उसमें आपको अप्रोच ओवर ट्रेवल मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ए यस प्लस सर। एल प्लस ओ है, स्मॉल एल है ये, और कैपिटल एल क्या है? इन तीनों का समेशन है। स्मॉल एल है, ठीक है सर। हाँ, ये स्मॉल एल है, यहाँ पे कैपिटल एल नहीं है। ये कैपिटल एल जो हमने फिगर में दिखाई वो है, ये टोटल कैपिटल एल कर, इसलिए मैंने इसको चेंज किया हल्का। यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल एल है, ये डिस्टेंस अप्रोच है, और ये डिस्टेंस ओवर ट्रेवल है। आ रहे समझ में? यस सर। और कोई डाउट किसी को? नहीं सर, बस हो गया। इसको आप, मैंने बोला आप रट सकते हो, 59 लेके जा सकते हो, इनकेस कुछ नहीं मिला तो 59 लेके चले जाओ टोटल। सो इट विल यस बी सर। 0.5 D 1059, आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपन आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे। तो ये न्यूमेरिकल देखो, कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम फॉर ड्रिलिंग 4 होल्स, 4 होल बनाने हैं, ऑफ 10 mm डायमीटर इन अ वर्क पीस। 10 mm डायमीटर, 10 mm डायमीटर होल कट करना है यूजिंग फॉलोइंग डेटा। थिकनेस ऑफ द वर्क पीस 20 mm, cutting speed 30 meter per minute, feed 0.1 mm per revolution, and number of cutting edges 2। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इन चीजों को लेके आए। we have mentioned the data given in this question, so number of holes to be cut 4, diameter of hole 10, वर्कपीस थिकनेस 20, और ये कहीं नहीं से कहीं तक नहीं लिखा हुआ है कि ब्लाइंड होल बनाना है, थ्रू होल बनाना, तो आप मान के चलो हमें ब्लाइंड होल थ्रू होल ही बनाना है, 20 mm तक ही बनाना है। वर्कपीस की थिकनेस 20 mm मतलब स्मॉल एल कितना हो गया? 20 mm हो गया। कटिंग स्पीड 30 mpm, फीड 0.1 mm पर रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ कटिंग एजेस 2। अब सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले या तो हम एल निकाल लें या हम एफ निकाल लें। मैंने यहाँ पे एल एफ निकाला, फीड निकाली है, फीड इन mm पर मिनट। तो फीड का जो फॉर्मूला था उस वो क्या था? F1 इंटू एन। तो हमें F1 तो पता है, ये कितनी दी गई है यहाँ पे? इट इज 0.1 mm पर रेवोल्यूशन। नंबर ऑफ कटिंग एज स्मॉल एन भी दे रखा है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कैपिटल एन से, तो हमें क्या मिल जाएगा? F2 मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। तो उसके यस पहले सर। हमें n चाहिए। तो n कैसे निकलेगा? चूंकि इसका जो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000, जो हमें न्यूमेरिकल में दिया है, v भी दे रखा है, कटिंग स्पीड दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, n अननोन है। तो सबसे पहले हम n निकाल लेंगे, इस n फिर उसको इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो F2 निकल आएगा, और बाकी जो L O और A दे रखा है इससे कैपिटल, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या निकाला? n निकाला, RPM। सो 30 इज द कटिंग स्पीड। ठीक है, इट इज इक्वल टू पाई इंटू डी, डायमीटर इंटू एन। ये ध्यान में रखना है कि जो डायमीटर इट इज गिवन इन एन mm, सॉरी, इट इज गिवन इन mm। यदि आपने मीटर में लिया है तो 1000 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इस mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? इसको 1000 से डिवाइड किया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट कैपिटल एन और RPM ऑफ द
स्पिंडल, ठीक है. Then we calculate the feed in mm per minute. For that we will utilize the formula Fp is equal to F1 into N into N. So where F1 is given as 0.1 mm per revolution, number of cutting edges are 2, and RPM we have taken it roughly rounded off it to 955. So it comes as 191 mm per minute. That indicates that tool drill bit is moving this much mm per minute. जब हम इसको काम करेंगे तो जो ड्रिल बिट रहेगा 1 मिनट में 191 mm अंदर जाएगा, मतलब 19 सेंटीमीटर से ज्यादा अंदर जाएगा वहां पर. We have calculated F2. Now we have to calculate capital L. For that, small l is given. Since we have to cut a hole, through hole in 20 mm workpiece, so इसकी 20 mm thickness ले ली. ये मैंने imagine कर लिया यहाँ पे. I have imagined it. Oh, over travel is 5 mm, and this approach length I have calculated using the given formula. Formula क्या था अपना? 0.5 into D into 1059. तो उससे कितना आ गया? 4.13 mm. ठीक है ना? Yes, अब इससे हमने कैपिटल एल निकाल लिया. अब सीधा सीधा फॉर्मूला है to calculate the machining time T, we will divide this by F2. So 29.13 divided by 191 minute, it will give you time in minute 0.153. तो ये क्या है? This is the time to cut one hole. It is in minute 0.153. आप चाहो तो सेकंड में निकाल सकते हो. Then we have to calculate the time to cut 4 holes. So we have multiplied it by 4. ये जितना टाइम है तो 4, तो ये टोटल टाइम आ गया. yes, आपको 10 का निकालना है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो. 2 होल का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको निकाल लो. ठीक है. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ड्रिलिंग टाइम. हालांकि न्यूमेरिकल्स आपके साथ सभी उसमें रहते हैं, लेकिन आपके कोर्स में मेंशन नहीं किए गए हैं, और चूंकि मैंने उसको ट्यूटोरियल में आपको दे दिया था, उसको सॉल्व करवा दिया. आप कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि 11:04 हुए, दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है. आप लोग फटाफट कोई डाउट हो तो बोल दो, अदरवाइज अटेंडेंस लगा के आप लीव कर सकते हो. मैं भी बंद करता हूँ फिर क्लास. सर वो जो क्या टाइप क्या थे आपने बताए थे? थ्रू होल और क्या थ्रू ड्रिल क्या था? ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड. ब्लाइंड और थ्रू. ये यदि हम वर्क पीस में पूरा होल नहीं कट करते हैं तो ये ब्लाइंड होल कहलाता है. चाहे वो यहाँ तक आए चाहे यहाँ तक आए, ये ब्लाइंड होल है. और ये थ्रू होल बनाना है इसमें. पूरा जो है. ओके सर, ठीक है सर. ठीक है. और किसी कोई डाउट तो नहीं? नो सर. तो आप लीव कर सकते हो, मैं बंद करता हूँ फिर. ठीक है. यस सर, थैंक यू सर. ओके. अटेंडेंस मार्क कर दो अपने सब लोग. ओके, थैंक यू बेटा. अटेंडेंस सबने मार्क कर दी है? यस सर. थैंक यू सर. ओके, मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ बेटा. यस सर.